Shailesh Pawar, and in this session we are going to continue our discussion about Java packages, and we'll be discussing about various access modifiers available in Java. So I'm going to start sharing my screen now. So this is the example that we had seen in our previous session regarding packages. So we had created three packages inside our project in NetBeans, application P1 and then P2. Application package had MyMain class in it. P1 package had ABC class in it, and inside P1 we had created one more package, that is P2, and then P2 package had PQR class in it. Okay. So now the first thing that we are going to discuss here is the various access modifiers that are available in Java. So we had not discussed about it previously because I wanted you to understand the concept of packages first, because access modifiers in Java are closely related with packages also. So as far as access modifiers in Java are concerned, there are 4 access modifiers here. So public, or say I will start with the most restricted one first, private. Then we have default access modifier. See, default access modifier means when we don't make use of any access modifier. जब भी हम लोग किसी भी access modifier का use नहीं करते, तब access modifier default होता है. मतलब अगर मैंने क्लास ABC बनाया, उसके अंदर मैंने पब्लिक void show ऐसे नहीं लिखा, मैंने सिर्फ void show ऐसे लिखा, तो फिर वो जो show मेथड है उसका जो access modifier होगा वो default access modifier होगा. Please understand one thing, that I am not talking about default keyword here. जो default keyword हम लोगों ने Java 8 के interfaces में जो default method के लिए use किया था, मैं उस keyword की बात नहीं कर रहा हूँ ना. default करके कोई access modifier as such लिखा नहीं जाता, but it is said that when you don't make use of any access modifier, तब access modifier default होता है. ठीक है. Then we have protected access modifier, and then finally we have public access modifier. So अब हम लोगों को इन चारों के बारे में डिस्कस करना है. See, as far as private is concerned, the theory is going to be very simple, that any member of the class with private access modifier can never be accessed from outside the class, है ना. भले inheritance हुआ हो तो भी child class भी parent की प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता. तो as far as private access modifier is concerned, rule is very same. If you want to access the private members of class, you need to be inside the class. From outside the class, you would never be able to access the private members of the class. Okay. Now, as far as default, protected, and public is concerned, okay, when we talk about public means you would be able to access the public member of the class from anywhere. From inside the class, from outside the class, from inside the package, from outside the package. Public members of a particular class, or public members of class, are accessible everywhere. Okay. Private members can only be accessed inside the class. Public members can be accessed from anywhere. Now we would have to understand the difference between these two, default and protected. और ये difference समझने के लिए अपने package वाले program में जाते हैं. Now, as far as class ABC is concerned, say I am going to come up with one more method here, and मैं इस method का नाम यहाँ पे लिखने वाला हूँ print, and then यहाँ पे हम लोग बोलेंगे print class ABC. I'll use the same message here. Print of class ABC that belongs to package P1 called. Okay. Now as you can see there, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने print method के सामने कोई भी access modifier use नहीं किया है. अगर किसी भी क्लास मेंबर के सामने कोई भी access modifier use नहीं किया जाता, इसका मतलब क्लियर है यहाँ पे
कि ये जो प्रिंट मेथड है यहाँ पे, इस यहाँ पर डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज हो रहा है. नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम लोग माई मेन में आते हैं. नाउ द मोमेंट यू विल गो इनटू माई मेन क्लास, हमें ये समझना है कि हम लोग अब कौन से पैकेज में, एप्लीकेशन पैकेज में, मतलब एबीसी जिस पैकेज को बिलोंग कर रहा है, P1 पैकेज, हम लोग उस पैकेज के अंदर प्रेजेंट नहीं है, हम लोग उस पैकेज के बाहर किसी दूसरे पैकेज में प्रेजेंट है. नाउ व्हाट आई वांट टू शो हियर इज वेदर we'll be able to call print method using abc object now. क्या अब हम लोग print method को कॉल कर पा रहे हैं यहाँ पे? As you can see that यहाँ पे compile time error डिस्प्ले हो रहा है. What is being displayed there? Print is not public in ABC, cannot be accessed from outside package. Now this point is very important, बहुत important point है ये. ABC क्लास के अंदर मैंने print method को कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया, मतलब डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर दिया हुआ है. और जब हम लोग उस प्रिंट मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम लोग एबीसी क्लास के पैकेज में प्रेजेंट नहीं है, हम लोग P1 पैकेज में प्रेजेंट नहीं है, हम लोग P1 पैकेज के बाहर प्रेजेंट है. सो द पॉइंट हियर इज द members of the class which have been declared, which are with default access modifier, can be accessed from anywhere within the current package. बट जैसे ही हम लोग करंट पैकेज के बाहर चले जाएंगे, डिफॉल्ट मॉडिफायर वाले किसी भी डेटा मेंबर को हम लोग करंट पैकेज के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते. सो द पॉइंट हियर इज, जब हम लोग डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर की बात करें, सो सिंपली से सच मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड from anywhere within the current package. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये जो मेंबर्स हैं, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर वाले मेंबर्स, वो करंट पैकेज के अंदर हम लोग कहीं से भी उन्हें एक्सेस कर सकते हैं ना, बट नॉट फ्रॉम साइड द पैकेज. बट पैकेज के बाहर से इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता. डिफॉल्ट डेटा मेंबर्स को और डिफॉल्ट मेंबर्स को करंट पैकेज के अंदर हम लोग कहीं पे भी एक्सेस कर लें, पैकेज के बाहर से हम लोग उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते. ओके, नाउ लेट्स कंसीडर द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर. ठीक है, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर का कंसेप्ट कंसीडर कर लेते हैं. तो व्हाट वी विल डू, तो अब यहाँ पे एरर है, कंपाइल टाइम एरर, सो आई विल जस्ट कमेंट दिस स्टेटमेंट. नाउ लेट्स कम टू abc.java. अब abc.java में आ जाते हैं, एंड नाउ हियर आई एम गोइंग टू पुट वन मोर मेथड. एक और मेथड मैं यहाँ पे पुट अप कर रहा हूँ, से डू नाम की मैंने मेथड लिखी हुई है यहाँ पे, एंड देन आई से डू ऑफ क्लास एबीसी that belongs to package P1. हम लोग लिख देंगे. ओके, डू नाम नहीं दे सकते. सी अब यहाँ पे इश्यू क्यों है? ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये जो डू नाम है, डू कीवर्ड जो है वो तो डू वाइल में यूज किया जाता है, तो है ना, इट हैज स्पेशल मीनिंग. सपोज मैं उस मेथड का नाम डू टास्क कर देता हूँ. ओके, नाउ मेथड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड. मेथड को एज प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया हम लोगों ने. माई मेन में आ जाते हैं, and let's check whether we are able to call that do task method using the abc class object. Again you can see कि यहाँ पे compile time error display हो रहा है. क्या लिखा है वहाँ पे? do task has protected access in abc. So now you should be able to understand similarity between default access modifier and protected access modifier here. Similarity ये है कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी करंट पैकेज के अंदर कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है, बट आउटसाइड द करंट पैकेज एक्सेस किया नहीं जा सकता, है ना.
till this point in time, this is the similarity between the default and protected. तो सर फिर if that is the similarity, तो फिर protected नाम का access modifier अलग से बनाया क्यों? Okay, let's do one thing. एक काम करते हैं हम लोग यहाँ. So this is compile time error. This is proven fact now. ये तो proven है, अब इसमें तो कोई doubt नहीं होना चाहिए. Now let's do one thing. I am going to ask my main class to inherit from ABC class. मैं my main class को ABC class से inherit करने के लिए बोल रहा हूँ. And now I am going to create object of my main class here. मैं my main class का object create करूँगा यहाँ. And now using this object, we are going to call the do task method. And now as you can see there, यहाँ पे compile time कोई भी error नहीं आ रहा. अगर हम लोग प्रोग्राम को रन भी करेंगे तो you should see the do task method getting called here. तो अब क्वेश्चन ये आ जाता कि फिर what is the difference between protected access modifier and default access modifier? एक काम करते हैं, obj1 के थ्रू ये देख लेते हैं कि क्या हम लोग प्रिंट मेथड को कॉल कर पा रहे हैं. तो आंसर इज नो, हम लोग प्रिंट मेथड को कॉल नहीं कर पा रहे. ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे डू टास्क मेथड को कॉल कर पा रहे हैं. सो नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज माय मेन ने एबीसी को इनहेरिट कर लिया. तो आंसर इज यस. सो बीइंग चाइल्ड, एबीसी की जो मेथड्स है वो माय मेन के लिए अवेलेबल हो जानी चाहिए थी. तो आंसर इज अगेन यस, माय मेन के लिए वो मेथड्स अवेलेबल हो जानी चाहिए. तो हम लोग एबीसी के डू टास्क मेथड को माय मेन के थ्रू कॉल कर पा रहे हैं. तो आंसर इज यस, कल कर पा रहे हैं. क्या हम लोग एबीसी क्लास के शो मेथड को माय मेन के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर पा रहे हैं? तो आंसर इज यस, वो तो पब्लिक है ना, और ऊपर से इनहेरिटेंस हुआ है तो वो तो कॉल हो ही जाएगा. बट क्या हम लोग प्रिंट मेथड को कॉल कर पा रहे हैं यहाँ पे? तो आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि प्रिंट मेथड का एक्सेस मॉडिफायर तो क्या है? डिफॉल्ट है. और डिफॉल्ट के बारे में मैंने क्या बोला था? डिफॉल्ट मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर विद इन द करंट पैकेज, बट करंट पैकेज के बाहर से किसी भी सिचुएशन में हम लोग उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते. बट प्रोटेक्टेड के बारे में हम लोगों ने ये देख लिया कि जैसे ही मायमेन ने एबीसी को इनहेरिट किया, मायमेन एबीसी का चाइल्ड बन गया. अब मायमेन के ऑब्जेक्ट ने डू टास्क मेथड को, जिसका एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड था, उसको तो कॉल कर दिया उसने. तो ऐसा क्यों हो रहा है? सी, प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर विद इन द करंट पैकेज एंड आउटसाइड द करंट पैकेज they can be accessed only by child class, or you can say outside the current package they can be accessed only by the child class object. Child class object protected members को पैकेज के बाहर से भी एक्सेस कर सकता है. तो अब ये मैटर नहीं करता कि चाइल्ड क्लास करंट पैकेज के अंदर प्रेजेंट है या करंट पैकेज के बाहर प्रेजेंट है, उसका ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा. बट डिफॉल्ट के बारे में दिस थिंग इज नॉट फॉलोड. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर. ये प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर के बीच का डिफरेंस. आई जस्ट होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. So this is again going to be compile time error. यहाँ पे फिर से compile time error. Okay, so please keep these things in mind. Private members can never be accessed from outside the class. Public members can be accessed from anywhere. Default members can be accessed anywhere within the current package, but not outside the current package, not even by the child classes. Whereas when we talk about protected, can be accessed anywhere within the current package, can be accessed outside the current package, but by only
द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, है ना। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट छोड़ के बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता. दैट इज द पॉइंट हियर. Okay. Now, so I just hope that you people have understood everything about the access modifiers, how access modifiers work in case of Java. Java में access modifiers कैसे work करते हैं. Now, the last thing that we are going to learn about packages is how to create jar file using packages. तो packages के अंदर जो classes है या package के अंदर जो package या बहुत सारे packages या पूरी जो hierarchy बना के रखी है, हम लोग उसके थ्रू जार फाइल कैसे जनरेट कर सकते हैं. सी व्हाट इज जार फाइल हियर. जार स्टैंड्स फॉर जावा आर्काइव. मतलब सपोज यू हैव मल्टीपल क्लासेस विथ यू, बहुत सारे क्लासेस पैकेजेस हम लोगों ने बना के रखे हैं, एंड देन ये कोड मुझे नेक्स्ट किसी दूसरे मशीन पे मूव करना है. ठीक है. तो मूव करते वक्त इट विल ऑलवेज बी सजेस्टेड और से इट विल ऑलवेज बी प्रिफर्ड कि तुम्हारे कोड की साइज मिनिमम हो. तो क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब इन अ वे मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों के पास जो भी क्लास फाइल्स है ना, मुझे उनको कंप्रेस फॉर्मेट में भेजना है, ताकि बहुत सारे क्लास फाइल्स है तो उनकी एक सिंगल फाइल बन जाए कंप्रेस फॉर्मेट में, ताकि वो जगह भी कम ले और एक ही फाइल को मैं दूसरे मशीन पे लेके जाऊं. और वहां पे जाने के बाद भी मुझे उसे डीकंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्टली मैं उसे अपने प्रोजेक्ट में यूज करना चाहूंगा, सो दैट ओवरऑल अपने एप्लीकेशन की साइज कम हो जाए. अगर ये करना है हम लोगों को, तो हम लोग अपने पैकेज का जो स्ट्रक्चर है उसकी जार फाइल जरूर क्रिएट कर सकते हैं. नाउ इफ वी वांट टू डू सो, कैसे क्रिएट करेंगे. विल गो टू कमांड प्रॉम्प्ट. यहाँ पर अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर बना हुआ है, P1 पैकेज बना हुआ था, उसके अंदर abc.class फाइल, देन P1 के अंदर P2 पैकेज, उसके अंदर pqr.class फाइल. तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था. नाउ लेट्स क्रिएट जार फाइल आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर. सो व्हाट विल वी डू, we will just have to make use of jar command here. So we'll say jar minus cvf, jar hyphen cvf. C stands for create, V stands for verbose. Verbose means jar file कैसे create हो रही है उसकी पूरी प्रोसीजर वहां पे दिख जाएगी, and F stands for the name of the file. So first we will have to provide the name of the jar file, and then we will have to provide the नेम ऑफ द फोल्डर जिसके अंदर के क्लासेस के हम लोगों को जार फाइल बनानी है. तो मैंने P1 फोल्डर का नाम दे दिया. ओके, एंड देन आई विल जस्ट क्लिक ऑन एंटर, एंड एज यू कैन सी देयर ये पूरी प्रोसेस दिख गई हम लोगों को. वो दिख रही है वो V ऑप्शन की वजह से. ठीक है. C मतलब क्रिएट करो और F मतलब इस नाम की फाइल क्रिएट करो, डेटा. सो नाउ लेट्स चेक कि वो जार फाइल बनी है कि नहीं. तो यहाँ पे जाके हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जार फाइल क्रिएट हो चुकी है. नाउ लेट्स डू वन थिंग. अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस जार फाइल को अपने नेटबीन्स में कैसे यूज कर सकते हैं. तो आई विल गो टू नेटबीन्स. अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे बना हुआ P1 पैकेज, P1.P2 पैकेज में, उस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि वही स्ट्रक्चर अपने जार फाइल में भी अवेलेबल है. तो इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने डिलीट कर दिया. ठीक है. और डिलीट करने के बाद अब जार फाइल बनी हुई है. हाउ विल वी ऐड जार फाइल टू आवर प्रोजेक्ट. तो लाइब्रेरीज को राइट क्लिक करते हैं, विल गो टू ऐड जार. ऐड जार करने के बाद ये वो जार फाइल है जो हम लोगों ने क्रिएट की थी लेक्चर अंडरस्कोर प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर. विल जस्ट ओपन दैट जार फाइल हियर. और जैसे ही मैंने यहाँ पे वो जार फाइल सेटअप कर ली है. ओके. अब ये डू टास्क मेथड तो वो मैंने उस जार फाइल वाले क्लास में इंक्लूड नहीं की थी. अदरवाइज एज यू कैन सी देयर यहाँ पे सारी चीजें प्रॉपरली काम कर रही है. अगर हम लोग इसको रन करते हैं, इस पार्ट को मैं इस कोड को हटा दूंगा. तो ये पार्ट था. अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो एज यू कैन सी देयर द मेथड्स आर बीइंग कॉल्ड. तो मतलब अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर में जाके देखें तो यहाँ पे अपने पास P1 एंड P2 करके कोई पैकेज अपने एप्लीकेशन में प्रेजेंट नहीं है. बट हाँ, ये जो जार फाइल है, उस जार फाइल के अंदर डेफिनेटली ये पैकेजेस प्रेजेंट है और करस्पॉन्डिंग क्लासेस भी यहाँ पे प्रेजेंट है. तो ऐसे हम लोग जार फाइल का यूज करके एक मशीन पे जो बहुत सारी बनी हुई क्लास फाइल्स है या पूरा पैकेजेस का स्ट्रक्चर है, उसको दूसरे मशीन पे इजीली एफिशिएंटली लेके जा सकते हैं एक सिंगल फाइल बना के,
और उसको वहां पे यूज कर सकते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज कि जैसे हम लोगों ने फाइल्स को कंप्रेस किया है, तो सपोज ये जो P1 फोल्डर का स्ट्रक्चर बना था, मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने फाइल का स्ट्रक्चर यहाँ पे मतलब जार फाइल्स को मल्टीपल क्लास फाइल्स को कंप्रेस करके जार फाइल बनाई थी, वैसे ही हम लोग उस जार फाइल को डीकंप्रेस भी कर सकते हैं। अगर ये करना है तो द कमांड दैट विल बी यूजिंग इज गोइंग टू बी लाइक दिस, jar -xpf एंड देन अगेन हम लोग यहाँ पे data.jar लिख देंगे। लेट्स प्रेस एंटर। एज यू कैन सी देयर यहाँ पे काम हो गया। अब हम लोग जाके देख लेते हैं कि क्या P1 फोल्डर फिर से बन के आ गया, तो आंसर इज यस। या P2 फोल्डर भी फिर से बन के आ गया, तो आंसर इज यस। तो ऐसे हम लोग एक पूरे फोल्डर के अंदर की क्लास फाइल्स को जार फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं -cvf ऑप्शन यूज करके, एंड देन उस जार फाइल को अगर डीकंप्रेस करना है तो मैं -xvf ऑप्शन यूज करके उसको डीकंप्रेस कर सकता हूँ। ओके, सो आई जस्ट होप कि तुम लोगों को जार फाइल क्रिएशन का ये जो कंसेप्ट है ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अगेन इन रियल लाइफ कोई भी जार फाइल्स नोटपैड के थ्रू क्रिएट नहीं करता। आईडीज में जैसे हम लोग आईडी में कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जार फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है वहां पे। उस प्री क्रिएटेड जार फाइल का ही लोग यूज कर लेते हैं, प्रोग्रामर्स यूज कर लेते हैं। सो दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट पैकेजेस। हमारे in our coming sessions we'll be learning some more interesting topics from Java. So I'm going to stop sharing my screen now. Thank you.